हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का पार्ट सेकंड। इन दिस पार्ट वी आर नोइंग अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द अरेंजमेंट ऑफ द atoms and elements in the modern periodic table. See, present basis for the classification of elements. The present basis for the classification of elements in the atomic number of elements. अब से पहले अब जितने भी हमने पीरियोडिक ट्रेंड्स देखे उनमें हमने क्या देखा, एटॉमिक मास हमारा ट्रेंड रहा, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ, एटॉमिक नंबर. The significance of the atomic number in the classification of elements is that the being equal to the number of the electron in atom. ये सिग्निफिकेंस के एटॉमिक नंबर का, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही उसके पास क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर होगा. इट हेल्प्स इन द अरेंजिंग द एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. उन्होंने अरेंज किया एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऑर्डर पे. हेंस वी से द प्रेजेंट बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट बेसिस है एलिमेंट्स को अरेंज करने का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. When the atomic number is become more fundamental property of the classification of elements in the periodic table as compared to atomic mass, then it can remove the anomalies found in the Mendeleev's periodic law. जो मेंडलीव के periodic law में जो कमियां आ रही थी उनको उसने दूर किया. अब देखते हैं कौन कौन सी anomalies थी. Explanation of the anomalies of the Mendeleev's periodic law by modern periodic law. When elements are arranged in the periodic table according to the increasing number of atomic number, then the following anomalies are corrected. Explanation of position of isotopes. जो आइसोटोप का कॉन्सेप्ट उसमें डिस्टोर्ट हो रहा था, प्रॉपर फिट नहीं हो रहा था. वी नो दैट आइसोटोप्स आर द दोज स्पीशीज दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. हम जानते हैं कि आइसोटोप वो स्पीशी है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, दे आर प्लेस्ड इन द वन ग्रुप, हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज. उनको वन ग्रुप में रखा गया, एक ही ग्रुप में रखा जा सकता था जिनकी प्रॉपर्टीज सेम होती, इसलिए एनोमैलीज दूर हो गई. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑल थ्री आइसोटोप्स आर प्लेस्ड इन ग्रुप फर्स्ट because all three isotope of hydrogen has the same atomic number, same number of electrons and the same electron configuration, that is similar chemical properties, in placed in group first. Explanation of position of cobalt and nickel. Cobalt और निकल का जो मास नंबर का डिस्टोर्शन था वो भी दूर हो गया. वी नो दैट atomic number of the cobalt is 27, nickel is 28, so that according to the modern periodic law they are arranged in correct order. Now modern periodic law and Moseley periodic law we say. This law was given by the Henry Moseley in 1913. According to the Henry Moseley, modern periodic law states that physical and the chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. जो physical और chemical properties वो किसका periodic function है, atomic number का. If the elements are arranged in the order of their increasing atomic number after a regular interval, elements with the similar properties are repeated. After some regular interval similar properties repeat होने लगेगी, तो उनको same group में रखा जाएगा. Periodicity, the repetition of the properties of the elements after a regular interval. जो properties का repeat होना है एक regular interval के बाद में, when the elements are arranged in the order, जब element को order में रखा increasing atomic number, then it called periodicity. जब उसको increasing atomic number के order में रखा गया. Cause of periodicity, the repetition of the properties of the elements is due to the reoccurrence of similar valence shell electron और electron configuration after a regular interval, that is called cause of periodicity. Periodicity के बेस पे हमने उसे अरेंज कर रखा है. अल्कली मेटल्स आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, दैट इज वन इलेक्ट्रॉन इन वैलेंशियल. देयरफॉर द ऑल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्लेस्ड इन अ सिंगल ग्रुप, प्लेस्ड इन अ सेम ग्रुप. लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, वन इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल, सो दे ऑल आर प्लेस्ड इन अ ग्रुप फर्स्ट. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल क्या है? द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेंज, बोहर एंड वर्नर्स एंड बरी. चार साइंटिस्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है, रेंज का, बोहर का, वर्नर का और ब्यूरी का. दिस इज द टेबल ऑल्सो रिक्वायर्ड बोहर्स टेबल, इसे बोहर टेबल भी कहा जाता है, सिंस इट फॉलोज द बोहर्स स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन 4 टाइप्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट्स. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 18 ग्रुप्स एंड आर द नंबर्ड एज 1 2 3 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 18 ग्रुप्स. इन अ ग्रुप ऑफ द ऑल एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन. हर एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट रखे हैं सारों में सेम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन आएंगे. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट 7 पीरियड्स. इन ए पीरियड ऑल एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ शेल्स. एक पीरियड में सेम नंबर ऑफ शेल्स होंगी. बट वी कैन मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन द 1 यूनिट. एक एक नंबर से इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा. देखिए हमारे पास लिथियम है, लिथियम के बाद में बेरिलियम आता है, तो लिथियम के पास 3 एटॉमिक नंबर है तो 2,
1, फिर यहाँ पे 2 और 2, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा वैलेंस शेल के अंदर। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द बोर्स फॉर्मूला 2n², वेयर n इज द नंबर ऑफ शेल। Now classification of elements in the modern periodic table. In modern periodic table, elements are classified into 4 blocks: S block, P block, D block and F block. We studied the element block wise. First is S block. General electron configuration block is NS1 to 2, यानी कि जो S shell सब shell है उसके अंदर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। Here n is the number of shell, S is a block and 1 to 2 are electrons. Group 1 and 2 elements contribute the S block. S block lies extreme left of the periodic table. S block includes metals. Last electron entered in the S block. Group 1 ग्रीक नोटेशन एलिमेंट्स हैं हे, ली, ना, की, रब से फरियाद, ये हमारे सारे इसके एलिमेंट्स होंगे। हाइड्रोजन इसमें से एक नॉन मेटल है जो ग्रुप फर्स्ट का पार्ट है, ठीक है। बाकी सारी अल्कली मेटल्स होंगी। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन देखोगे, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। हे से हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना से सोडियम, क से की से पोटाशियम, रब से रुबीडियम, से सीजियम, फरियाद से फ्रांसियम। ग्रुप सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। शॉर्टकट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। बेटा से बेरिलियम, मांगे से मैग्नीशियम, कार से कैल्शियम, स्कूटर से स्ट्रोंटियम, बैरियम से बाप से बैरियम, रोए से रेडियम। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आउटर मोस्ट शेल कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2 है तो इनको एक ग्रुप में रखा गया। देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स, उसके बाद हम 13 से 18 तक को स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ पी ब्लॉक इज NS2 NP1 to 6। पी के अंदर कितने आ सकते हैं, 1 से 6 तक आ सकते हैं, और इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। सो ग्रुप नंबर 13 to 18 एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट द पी ब्लॉक। 13 से 18 एलिमेंट का क्या करते हैं, 18 जो ग्रुप है वो क्या करते हैं, पी ब्लॉक कंसिस्ट करते हैं। पी ब्लॉक लाइज ऑन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पी ब्लॉक इंक्लूड सम मेटल्स, ऑल नॉन मेटल्स एंड एक्सेप्शन हाइड्रोजन एंड मेटलॉइड्स। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटेड इन द पी ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर करेगा, पी ब्लॉक में। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक आर द कलेक्टिवली कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, पहला मेंबर बोरॉन है तो बोरॉन फैमिली। बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला। बैंगन से बोरॉन, आलू से एल्यूमिनियम, गाजर से गैलियम, इन से इंडियम, थैला से थैलियम। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप 14 कार्बन फैमिली। कहे सिया जी सुनो प्रभु। कहे से कार्बन, सिया से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुनो से टिन, प्रभु से लेड। आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली। नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी। नेपाल से नाइट्रोजन, पाकिस्तान से फॉस्फोरस, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, सब से एंटीमनी, भिखारी से बिस्मथ। आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स। ग्रुप नंबर 16 ओ स्टाइल से टेपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। फिर कल बाहर आई एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेंटाइन। आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। ग्रुप नंबर 18 हरभजन, नेहरा, अगरकर, 0 रन। हीलियम, हरभजन से हीलियम, नेहरा से नियोन, अगर से आर्गन, कर से क्रिप्टोन, 0 से जिनोन, रन से रेडोन। आउटर मोस्ट शेल में 88 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इनको अरेंज किया गया है। देन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स इज n-1 d1 to 10 ns 0 to 2। ग्रुप नंबर 3 to 12 कॉन्स्टिट्यूट द डी ब्लॉक। 3 से 12 जो ग्रुप है वो डी ब्लॉक का कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। डी ब्लॉक लाइज इन द मिडिल ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन द 4 सीरीज, यानी कि 4 सीरीज होते हैं। 3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, 4D सीरीज इटीरियम टू कैडमियम, 5D सीरीज लेंथेनम टू मर्करी एंड 6D सीरीज एक्टिनियम टू अनन बाइयम। The elements which have the partially filled d orbitals in the neutral state or any stable oxidation state are called transition elements। जिनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, चाहे वो ऑक्सीडेशन स्टेट में हो चाहे न्यूट्रल स्टेट में हो। द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्ड इनटू द डी सब शेल। दे ऑल आर मेटल्स। n-1 to d सब इज का पेनियल्टीमेट शेल। 3D सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। शॉर्टकट है साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, फेविकोल को नहीं छेड़ना जना। पहले 5 को याद करेंगे। साइंस टीचर विनीता कुमारी मैडम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। फिर फेविकोल को नहीं छेड़ना जनाब से आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। 4D सीरीज सेकंड ट्रांजिशन सीरीज। इसके लिए शॉर्टकट है यारी जरा निभाना मौत तक से यूटेरियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम।
रुको और राह पर आगे कुआं है, रोहिनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम। 5D सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, इसमें है ला, हफ्ता, वर्ना, रे, लेंथनम, हाफनियम, टेंटलम, टंगस्टन, रिहीनियम। उसे इधर पिटाई और होगी, उसे से ओस्मियम, इधर से इरिडियम, पिटाई से प्लेटिनम, और से गोल्ड, होगी से मरकरी। नेक्स्ट इज एवलोक एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसका आपको ज़्यादा याद नहीं करना है, सिर्फ याद रखनी थोड़ी सी बातें। ऑल एवलोक एलिमेंट लाइज इन थर्ड ग्रुप, दे ऑल आर द मेटल्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज कॉल्ड, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं, लेंथेनोड्स कहलाती हैं। सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनोड्स कहलाती है। एफ ब्लॉक कंटेन द टोटल 18 एलिमेंट्स। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन 4F सीरीज कंटेन्स 14 एलिमेंट्स, cesium to ल्यूरेनियम। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज 5F सीरीज कंटेन्स द 4 एलिमेंट्स, 19 थोरियम लैंथेनम। Periods prediction of periodic table or group. The block of an element corresponding to the type of subshell in which the last electron enter. जो block है वो होते हैं जिनमें last electron enter करता है। The group is predicted from the number of the electrons in the valence shell और penny limitation, उसे group कहा जाता है। For S block elements, group number is equal to number of valence electron, जितने उसके पास valence electron उतना उसका group number हो जाएगा। P block elements 10 plus number of valence shell electron। D block के लिए number of the electron in n-1 into D subshell and the number of electron in valence shell. Periods is predicted by number of shell, number of shell से periods predict होता है। General properties of periodic table. There are the 17 known metals including hydrogen in periodic table. 5 known metals are solids, carbon, phosphorus, sulfur, selenium and iodine. 1 known metal is liquid, bromine. 11 known metals are gaseous. 6 gases are the monoatomic, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. 5 gases are diatomic, hydrogen, fluorine, nitrogen, oxygen, chlorine. There are the 8 metalloid in the periodic table. Boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, tellurium, polonium, astatine. 5 elements are liquid at room temperature. Cesium, francium, gallium, mercury and bromine. Position of hydrogen. Hydrogen is placed as the top of the group first above the alkali metals because electron configuration of hydrogen is similar to those alkali metals. But hydrogen is a small in size as many properties of the hydrogen is different from those of the alkali metals. So they are the not included in the group of the alkali metals. Hence the hydrogen is alone placed at the head of the periodic table. See, this is a periodic table. ये हमारी periodic table रहने वाली है। इसमें आप देखोगे फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, ये हमारी S ब्लॉक हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? S ब्लॉक। उसके बाद में हम आ जाते हैं 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये हमारे हो जाएंगे P ब्लॉक। और ग्रुप नंबर 3 to 12 हमारा रहेगा D ब्लॉक। ये सारे मेंबर्स मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. The trends observed in the some important properties of the elements in the moving down the group top to bottom and across the period left to right. ये इसके अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे. Characteristics of groups top to bottom. When we move from top to bottom along a group, number of the valence shell electron and valency remains same. यानी आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो सेम रहेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम. When we move from top to bottom along a group, atomic radius and atomic size increase. देखिए atomic size कैसे इंक्रीज हो रहा है यहाँ देख सकते हैं. एटॉमिक साइज इंक्रीज होने का रीज़न, नंबर ऑफ शेल क्या होती जा रही है? इंक्रीज. जैसे जैसे शेल बढ़ेगी साइज भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा. When we move from top to bottom along a group, the metallic character increases, from non-metallic character decreases. ये भी आपको याद रखना है. Electronegativity. It is defined as the tendency to attract the shared pair of electron towards the itself is called electronegativity. Fluorine, oxygen, nitrogen, most electronegative element in periodic table. When you move from top to bottom, value of the electronegativity decreases. याद रखना है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या है? डिक्रीज होती जाती है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो मेटल्स के पास नहीं होती. व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम अलोंग अ ग्रुप, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स इंक्रीज. इसी तरह से हमारा जो है फ्रांसियम मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पूरी पीरियोडिक टेबल में. Because electron losing tendency of metal increases when we move from top to bottom and shielding और screening effect is increase. देखिए
जब नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हो जाएगी तो न्यूक्लियस से जो शेल्स की दूरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी और उनमें आपस में क्या होने लगेंगी, रिपल्शन होने लगेगी। इसे स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। When we move from top to bottom along a group, then chemical reactivity of non metal decreases. जो chemical reactivity है non metal की वो decrease होने लगेगी. As we go down in the group, the tendency of the electron is decreases. gain of electron की tendency decrease होने लगेगी, जिससे उनकी जो reactivity कम होती जाएगी. इसे electron affinity कहते हैं. Characteristics of the periods from left to right. When we move from left to right in a period, number of the valential electrons are increases by 1 unit. ये हम पढ़ चुके हैं कि एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेगा. देखिए एलिमेंट्स इन थर्ड पीरियड 281, फिर 2 3, लास्ट वाले में 4 5 6 7 8 तक जा रहे हैं. When you move from left to right along a period, valency of elements first increases for 4, then up to 0. पहले 4 तक इंक्रीज हुई वैलेंसी, फिर उसके बाद में गेन करने की टेंडेंसी आ गई है फॉस्फोरस से, फिर 3 गेन कर सकता है, 2 गेन कर सकता है, 1 कर सकता है, लास्ट में जाके 0, कोई गेन नहीं करेगा. When you move from left to right along a period, the atomic size and atomic radii are decreases. From left to right along a period, the electrons are added to the same shell and effective nuclear charge effect is increases. जिससे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट यानी कि जो न्यूक्लियस का चार्ज का इफेक्ट है आउटर मोस्ट शेल में वो इंक्रीज होने लगता है. चार्ज इफेक्ट इट इज डिफाइंड एज द अट्रैक्शन ऑफ द प्रोटॉन ओवर द लास्ट शेल. अब देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, जैसे अब देखिए शेल तो नंबर सेम है, बट जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ता जाएगा और उसी सेम शेल के ऊपर उसकी जो पावर है ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे उसको क्या कर लेगा, कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा और साइज क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा. बट द साइज ऑफ नोबल गैसेज आर लार्जर ड्यू टू द स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी. उसका साइज बड़ा हो जाएगा क्योंकि वो उस पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंटर तो कर जाएगा, बट उसकी स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी होने के कारण उसका साइज फिर से बड़ा हो जाएगा. When you move from left to right along a period, metallic character is decreases but non-metallic character increases. When you move from left to right along a period, value of the electron activity increases, क्योंकि नॉन मेटल की तरफ बढ़ते हैं. When you move from left to right along a period, the metallic character decreases but non-metallic character increases. When you move from left to right along a period, chemical reactivity first decreases then increases. क्योंकि जब जाएंगे फर्स्ट डिक्रीज होने लगेगी फिर इंक्रीज होने लगेगी. थर्ड पीरियड आर केमिकल एक्टिविटी डिक्रीज हुई सिलिकॉन तक, फिर दोबारा से बढ़ने लगी और नॉन रिएक्टिव हो जाएगी आर्गन. आई होप आर यू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एट अवर चैनल for upcoming notification. Thank you and have a nice day.